దేశంలో సంచలనం సృష్టించిన పహల్గాం దాడిలో పాల్గొన్న ముగ్గురు ఉగ్రవాదులను భారత బలగాలు మట్టుపెట్టాయి. కశ్మీర్లోని శ్రీనగర్ ప్రాంతంలో ఉగ్రవాదులు ఉన్నారనే సమాచారంతో బలగాలు అక్కడికి చేరుకున్నాయి. రాష్ట్ర పోలీస్ వ్యవస్థతో పాటు కేంద్ర బలగాలు కలిసి ఆపరేషన్ మహదేవ్ నిర్వహించారు. ఇందులో భాగంగా ముగ్గురు ఉగ్రవాదులను ట్రాక్ చేస్తూ వెళ్లిన బలగాలను గమనించి వారు కాల్పులు జరిపారు. దీంతో అప్రమత్తమైన బలగాలు తిరిగి కాల్పులు జరపడంతో ముగ్గురు కీలక ఉగ్రవాదులు హతమయ్యారు. ఈ ఎన్కౌంటర్ హిర్వాన్ లిద్వాస్ ప్రాంతంలో చోటు చేసుకుంది. ఆసిఫ్ ఫౌజీ, సులేమాన్ షా, అబుతల్హా అనే తీవ్రవాదులను ఆర్మీ మట్టుబెట్టింది. దేశంలో సంచలనం సృష్టించిన పహల్గాం దాడిలో పాల్గొన్న ముగ్గురు ఉగ్రవాదులను భారత బలగాలు మట్టుపెట్టాయి. కశ్మీర్లోని శ్రీనగర్ ప్రాంతంలో ఉగ్రవాదులు ఉన్నారనే సమాచారంతో బలగాలు అక్కడికి చేరుకున్నాయి. రాష్ట్ర పోలీస్ వ్యవస్థతో పాటు కేంద్ర బలగాలు కలిసి ఆపరేషన్ మహదేవ్ నిర్వహించారు. ఇందులో భాగంగా ముగ్గురు ఉగ్రవాదులను ట్రాక్ చేస్తూ వెళ్లిన బలగాలను గమనించి వారు కాల్పులు జరిపారు. దీంతో అప్రమత్తమైన బలగాలు తిరిగి కాల్పులు జరపడంతో ముగ్గురు కీలక ఉగ్రవాదులు హతమయ్యారు. ఈ ఎన్కౌంటర్ హిర్వాన్ లిద్వాస్ ప్రాంతంలో చోటు చేసుకుంది. ఆసిఫ్ ఫౌజీ, సులేమాన్ షా, అబుతల్హా అనే తీవ్రవాదులను ఆర్మీ మట్టుబెట్టింది. ఇక ఇటు దేశంలో అయితే సంచలనం సృష్టించిన పహల్గాం దాడిలో ఎవరైతే ముగ్గురు ఉగ్రవాదులు పాల్గొన్నారో ఆ ముగ్గురు ఉగ్రవాదులను భారత బలగాలు అయితే మట్టుబెట్టాయి. దీనికి సంబంధించి మరిన్ని అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి పవన్ అందిస్తారు. పవన్, ఆపరేషన్ సింధూర్ పైన పార్లమెంట్ లో చర్చ జరుగుతున్న నేపథ్యంలోనే జమ్మూ కాశ్మీర్ లో ఆపరేషన్ మహదేవ్ సంబంధించిన పూర్తిగా ముగ్గురు ఉగ్రవాదులు చనిపోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. అయితే ఈ యొక్క ఎన్కౌంటర్ సంబంధించి చూస్తే మాత్రము ప్రధానంగా జమ్మూ కాశ్మీర్ లోని యొక్క శ్రీనగర్ లోని దచ్గామ్ నేషనల్ పార్క్ సమీపంలో ఈ యొక్క ఎన్కౌంటర్ కూడా జరిగింది. అయితే వీరంతా కూడా హర్వాన్ అటవీ ప్రాంతంలో పూర్తిగా నక్కినట్లుగా గత నెల రోజుల నుంచి కూడా నిఘా వర్గాలకు సంబంధించి సమాచారం కూడా వచ్చింది. ముగ్గురు ఉగ్రవాదులు ఆసిఫ్ ఫౌజీ, సులేమాన్ షా, అబ్దుల్ తల్హా ఈ యొక్క ముగ్గురు ఉగ్రవాదులకు సంబంధించి చాలా రోజుల నుంచి కూడా నిఘా వర్గాలు వీరి యొక్క కదలికలపైన కూడా నిఘా పెట్టిన నేపథ్యంలో ఈరోజు కొద్దిసేపటి క్రితము ఈ యొక్క ముగ్గురు ఉగ్రవాదులు ఇటు ఆర్మీ కావచ్చు, సిఆర్పిఎఫ్ యొక్క కూంబింగ్ నిర్వహిస్తుండగా వారి పైన కాల్పులు జరిపారు. ఈ యొక్క కాల్పులు జరిపడంతో ఒక్కసారిగా అలర్ట్ అయిన బలగాలు మాత్రం వారి పైన తిరిగి కాల్పులు జరపడంతో ముగ్గురు ఉగ్రవాదులు కూడా చనిపోయినట్లుగా దీనికి సంబంధించి పూర్తిగా అధికారికంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ప్రకటించిన పరిస్థితి కూడా చూస్తున్నాము. అయితే ముగ్గురు మృతదేహాలకు సంబంధించి చూస్తే డ్రోన్ ద్వారా ఈ యొక్క ముగ్గురు మృతదేహాలను కూడా గుర్తించే పనిలో ఉన్నారు. అయితే వీరంతా కూడా పహల్గాం సంబంధించిన ఉగ్రవాది దాడిలో పాల్గొన్నట్లుగా దీనికి సంబంధించి పోలీసులు కావచ్చు, ఇంతేకాకుండా నిఘా వర్గాలు కూడా హెచ్చరికలు కూడా దీనికి సంబంధించి కూడా జారీ చేసిన నేపథ్యంలో వీరి పైన నిఘా పెట్టి మరి ఒక ఎన్కౌంటర్ కూడా చేశారు. ఎన్కౌంటర్ లో ముగ్గురు చనిపోయారు. ముగ్గురిని కూడా అబ్దుల్ ఫౌజీ, సులేమాన్ షా, అబ్దుల్ తల్హా యొక్క ముగ్గురికి సంబంధించి కూడా ఫొటోస్ కూడా మరికొద్ది సేపట్లో కూడా విడుదల చేసే అవకాశం కూడా కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే డ్రోన్ ద్వారా ఈ యొక్క ముగ్గురు మృతదేహాలకు సంబంధించి పూర్తిగా ఆనవాళ్ళను కూడా గుర్తించారు. ఆనవాళ్ళు గుర్తించిన నేపథ్యంలోనే వీరిని కన్ఫర్మ్ చేసుకున్న దాని తర్వాత ఇక వీరి డెడ్ బాడీకి సంబంధించిన ఫొటోస్ కావచ్చు, వీడియోస్ కావచ్చు కూడా విడుదల చేస్తారు. అయితే పహల్గాం సంబంధించిన దాడిలో దాదాపు 25 మందిని కూడా పూర్తిగా మట్టు పెట్టుకున్న యొక్క ఉగ్రవాదులకు సంబంధించి గత కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా గతంలో కూడా చూసాము. ఆపరేషన్ సింధూర్ నిర్వహించి ఎక్కడైతే ఉగ్రవాదులకు సంబంధించిన పూర్తిగా వారి స్థావరాలపైన కూడా దాడులు నిర్వహించి ఆ స్థావరాలను కూడా కూల్చివేసింది. అయితే ఈ యొక్క ముగ్గురు ఉగ్రవాదులు కూడా లష్కరే తోయిబాకు సంబంధించిన ఉగ్రవాదులుగా దీనికి సంబంధించి పూర్తిగా మనకు సమాచారం తెలుస్తుంది. అయితే లష్కరే తోయిబా సంబంధించిన ఉగ్రవాదులను గత కొన్ని రోజుల నుంచి కూడా వీరు ఎవరైతే పహల్గాం సంబంధించిన దాడిలో అమాయకులను మట్టుపెట్టారో వీరిని ఎలాగైనా
ఎన్కౌంటర్ చేయాలనే దానిపైన కూడా దీనికి సంబంధించి పూర్తిగా కేంద్ర ప్రభుత్వం నిఘా వర్గాలు కూడా దీనిపైన నిఘా పెట్టి మరి ఈ రోజు ముగ్గురిని కూడా హతం చేసిన పరిస్థితి కూడా చూస్తున్నాము. అయితే రాబోయే రోజుల్లో కూడా పూర్తిగా ఈ యొక్క నిఘా మరింత భద్రతగా ఉంటుందని చెప్పి కూడా దీనికి సంబంధించి హెచ్చరికలు కూడా జారీ చేసింది. అయితే సరిహద్దు ప్రాంతంలో కానీ ఎవరైనా పాకిస్తాన్ సంబంధించిన ఉగ్రవాదులు కానీ వారి యొక్క సానుభూతుల పరులు కానీ ఎవరైనా ఇటు భారతదేశంలోకి ప్రవేశించడానికి ప్రయత్నిస్తే మాత్రము వెంటనే వారిని ఎన్కౌంటర్ చేస్తామని చెప్పి కూడా ఇప్పటికే హెచ్చరికలు జారీ చేసిన నేపథ్యంలో సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో ఇటు ఆర్మీ కావచ్చు, సిఆర్పిఎఫ్ జవాన్లు మాత్రం ఎప్పటికప్పుడు 24/7 ఈ యొక్క నిఘాను మాత్రం ఇంకా కట్టుదిట్టం చేసిన పరిస్థితి కూడా చూస్తున్నాము. ఓవరాల్ గా ఈ యొక్క ముగ్గురు ఉగ్రవాదులు చనిపోవడంతో భారతదేశంలో కూడా చాలా మంది కూడా హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ యొక్క భారత ప్రభుత్వం ఉగ్రవాదులకు సంబంధించి సహించేది లేదని మాత్రము గత సింధూర్ ఆపరేషన్ లో చెప్పింది. ఇప్పుడు హరహర మహాదేవ్ సంబంధించిన ఆపరేషన్ లో మాత్రం ముగ్గురు పాకిస్తాన్ సంబంధించిన లష్కరే తోయిబా ఉగ్రవాదులను కూడా హతం చేసిన నేపథ్యంలో భారతదేశంలో చాలా మంది కూడా హర్షం వ్యక్తం చేసిన పరిస్థితి కూడా చూస్తున్నాము. పవన్, పార్లమెంట్ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. లైవ్ లో చూద్దాం. सोईदना मधु मांगनखी मसीगुम्बा मिलिट्री थबक असे मसी चामदगी हेंबा टेरोरिस्ट कया हाथखी कोटली में गुलपुर कैंप, भिम्बर में बरनाला कैंप, कोटली में अब्बास कैंप और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहावलपुर, मुहिदके और सरजाल और मेहमुना जोया शामिल थे। इनमें से 7 आतंकी शिविरों को भारतीय सेना ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, जबकि भारतीय वायुसेना ने मुरीदके और बहावलपुर को नेस्त नाबूद किया, जो लश्कर-ए-तोयबा और जैशे मोहम्मद के केंद्र हैं। पूरा ऑपरेशन मात्र, अध्यक्ष महोदय, जानकर पूरे सदन को प्रसन्नता होगी कि विद इन 22 मिनट्स पूरा ऑपरेशन समाप्त हो गया और हमने आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारा। सशस्त्र बलों ने हमारी माताओं और बहनों के सिंदूर का बदला लिया और प्रत्येक भारतीय इस भावना से ओतप्रोत हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि पूरा सदन एक बार हमारे सेना के बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम का अभिनंदन करे। अध्यक्ष महोदय, यह सिंदूर की लाली शौर्य की कहानी है। यह सिंदूर की लाली शौर्य की कहानी है, भारत के मस्तक पर वीरता की निशानी है। अध्यक्ष महोदय, सेनाओं ने अंधेरी रात होने के बावजूद हमले की सफलता के स्पष्ट एविडेंस भी जुटाए हैं, साक्ष्य है हमारे पास। अध्यक्ष महोदय, हमले के कुछ ही घंटों के भीतर एक प्रेस रिलीज और मीडिया ब्रीफिंग के माध्यम से इन्हें जनता की जानकारी के लिए जारी कर दिया गया था। मुझे यह पुष्टि करते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है कि सशस्त्र बल अपने सभी मिशन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम रहे और साथ ही कामयाब रहे। अध्यक्ष महोदय, 7 मई 2025 को हमले माने 1:35 के तुरंत बाद भारतीय डीजीएमओ ने हॉटलाइन संदेश के माध्यम से पाकिस्तान के डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन से संपर्क किया और टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ हमारे हमले के रेशनल और मेथोडोलॉजी के बारे में पूरी जानकारी दी और यह तथ्य भी बताया ये हमले एस्केलेटरी नेचर वाले नहीं थे, माने इसको हम आगे नहीं बढ़ाना चाहते। जिन मुहि मारा तीन मुहि मारे। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार प्रभु हनुमान ने लंका में अपनी रणनीति बनाई थी, उसी प्रकार हमने भी उन्हीं को निशाना बनाया जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया था।
हालांकि पाकिस्तान ने इस रेशनल को समझने से इनकार कर दिया और अगले कुछ दिनों तक सिविलियन और सैन्य ठिकानों पर गोलीबारी करके बड़े पैमाने पर सीज फायर वायलेशन करके स्थिति को एस्केलेट करने की उसने कोशिश की। अध्यक्ष महोदय, 7-8 मई 2025 की रात को क्लियरली आइडेंटिफाइड आतंकवाद संबंधी ठिकानों पर हमारे सफल ऑपरेशन के बाद, सफल हमले के बाद पाकिस्तान ने स्थिति को एस्केलेट कर दिया और अनमैन्ड एरियल सिस्टम और अन्य साधनों का उपयोग करके भारतीय वायुसेना के बेसेस, भारतीय वायुसेना के सेंसर्स और सेना के फॉर्मेशन हेडक्वार्टर से लेकर ब्रिगेडों तक पर भी उसने हमला कर दिया। हालांकि हमारी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस ग्रिड और काउंटर यूएस ग्रिड ने इन हमलों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया। अध्यक्ष महोदय, यस-400 यमारसैन आकाश मिसाइल सिस्टम और एयर डिफेंस गन्स बहुत प्रभावी साबित हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, इस एस्केलेशन पर हमारा जवाबी हमला स्विफ्ट, प्रोपोर्शनेट और नबातुला था। अध्यक्ष महोदय, जिसमें 8 मई 2025 को केवल चुनिंदा पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम और सेंसर नेटवर्क को प्रिसीजन गाइडेड मिशन द्वारा म्यूनिशंस द्वारा जो है टारगेट किया गया। अध्यक्ष महोदय, हमारी कार्रवाई पूरी तरह से सेल्फ डिफेंस में थी, न तो वह प्रोवोकेटिव थी और न तो एक्सपेंशनिस्ट थी। पाक द्वारा ये हमले 7 मई 25 से लगातार चले और 10 मई 2025 को रात लगभग 1:30 पर पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर भारत के ऊपर मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट और अन्य लॉन्ग रेंज वेपन्स का इस्तेमाल किया। इसके साथ साथ उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से जुड़ी टेक्नोलॉजीज का भी सहारा लिया। अध्यक्ष महोदय, उनके निशाने पर हमारे भारतीय वायुसेना के अड्डे, थल सेना के एम्यूनिशन डिपोज, हवाई अड्डे और मिलिट्री कैंट थे। अध्यक्ष महोदय, यह कहते हुए मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, काउंटर ड्रोन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ने पाकिस्तान के इस हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। पाकिस्तान हमारे किसी भी टारगेट को हिट नहीं कर पाया। अध्यक्ष महोदय, और हमारे किसी भी इंपॉर्टेंट एसेट को नुकसान नहीं हुआ है। हमारी सुरक्षा व्यवस्था अध्यक्ष महोदय चाक चौबंद थी और हर हमले को हम लोग रोका गया। मैं इसके लिए भारतीय सेना के बहादुर सैनिकों की जमकर सराहना करता हूं, जिन्होंने दुश्मन के हर मंसूबे पर पानी फेर दिया। और अपने प्रतिपक्ष के मित्रों से भी कहना चाहता हूं, एक बार फिर से भारत के सेना के जवानों का कम से कम मेज थपथपाकर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत पाकिस्तान के इस हमले के जवाब में हमारी कार्रवाई साहसिक थी, ठोस थी और प्रभावी थी। भारतीय वायुसेना ने वेस्टर्न फ्रंट पर पाकिस्तान के हवाई अड्डों, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया और इस मिशन को हमारी सेनाओं ने सफलतापूर्वक अंजाम देने में कामयाबी हासिल की। अध्यक्ष महोदय, हमारी सेनाओं ने चकलाला, सरगोधा, रफीकी, रहीम यार खान, जैकबाबाद, सुक्कुर और भोलारी जैसे बड़े एयरबेस पर प्रहार किया और पूरी दुनिया ने भारतीय वायुसेना के शौर्य और पराक्रम की तस्वीर देखी। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर ट्राई सर्विसेज कोऑर्डिनेशन का एक बेमिसाल उदाहरण था। जब भारतीय वायुसेना ने आसमान से हमले किए, हमारी थल सेना ने जमीन पर मोर्चा संभाल लिया। हमारे जवान नियंत्रण रेखा पर पूरी ताकत से डटे रहे और पाकिस्तान की हर हरकत का करारा जवाब दिया। अध्यक्ष महोदय, भारतीय नौसेना ने भी, लोग पूछते हैं भारतीय नौसेना का क्या रोल था, भारतीय नौसेना ने भी उत्तरी अरब सागर में
अपनी तैनाती मजबूत कर दी। भारतीय नौसैनिकों ने पाकिस्तान को यह साफ संदेश दिया कि हम समुद्र से लेकर जमीन तक पाकिस्तान के हर महत्वपूर्ण ठिकानों पर प्रहार करने में न केवल सक्षम हैं बल्कि हम तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, इस ऑपरेशन का मकसद टेररिस्ट कैंप्स और उनके सपोर्टर्स को टारगेट करना, उन्हें नेस्त नाबूद करना था और यह साफ संदेश देना था कि भारत आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस रखता है। भारत ने कार्रवाई इसलिए रोकी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के पहले और उसके दौरान जो भी पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए थे उसे हम पूरी तरह से हासिल कर चुके थे। इसलिए यह कहना, यह मानना कि यह ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया था, यह बेबुनियाद है और सरासर गलत है। मैं सदन को फिर से आश्वस्त करना चाहता हूं, अपने राजनैतिक जीवन में अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, अपने राजनीतिक जीवन में जानबूझकर कभी भी असत्य न बोलूं, इसकी भरपूर कोशिश की है मैंने, चाहे सदन हो अथवा सदन के बाहर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह भी अवगत कराना चाहता हूं, प्लीज बैठिए। आप क्यों खड़े? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि सीमा पार करना या वहां की टेरिटरी कैप्चर करना इस ऑपरेशन का उद्देश्य नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ करने का मकसद था अध्यक्ष महोदय उन टेरर नर्सरीज को खत्म कर देना जिन्हें पाकिस्तान ने बरसों से पाला पोसा था, और यह ऑपरेशन उन मासूम परिवारों को न्याय दिलाने के लिए लॉन्च किया गया था जिन्होंने पाक स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट अटैक्स में अपने प्रियजनों को खोया था। हमारी सेनाओं ने सिर्फ उनको टारगेट किया जो इन आतंकियों को सपोर्ट करते हुए भारत पर हमला करने की कोशिश में लगातार शामिल थे। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर का ओवरऑल पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव यह था कि आतंकवाद के रूप में प्रॉक्सी वार लड़ रहे पाकिस्तान को सजा दी जाए, और इसी वजह से आर्म फोर्सेस को पूरी आजादी दी गई थी कि वे अपने टारगेट खुद चुने और करारा जवाब दें। और इस ऑपरेशन का उद्देश्य कोई भी युद्ध छेड़ना नहीं था, बल्कि फोर्स के डिमॉन्स्ट्रेटिव यूज से एडवर्सरी को झुकने के लिए मजबूर करना था। 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली। अध्यक्ष महोदय, और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। आप रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। सुने, रुकिए तो रुकिए, बता देगा, बता दिए। अब आपको मौका मिलेगा। यह क्यों रुका, इसका पहले ही मैं पूरी तरह से वर्णन कर चुका है। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष को बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि कृपया एक बार मेरा पूरा भाषण पूछ लें। आपको प्रश्न पूछने की पूरी आजादी है, आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। अध्यक्ष महोदय, 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली और हॉस्टिलिटी रोकने की उन्होंने पेशकश की। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई हम लोगों के द्वारा कि यह ऑपरेशन केवल पाज किया गया है, स्थगित किया गया है। यह ऑपरेशन समाप्त नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, अगर पाकिस्तान की ओर से भविष्य में कोई भी
मिस एडवेंचर हुआ तो यह ऑपरेशन, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, दोबारा प्रारंभ हो। अध्यक्ष महोदय, भारतीय वायुसेना के जबरदस्त हमलों, नियंत्रण रेखा पर थल सेना की मजबूत जवाबी कार्रवाई और नौसेना के हमलों के डर ने पाकिस्तान को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। अध्यक्ष महोदय, और पाकिस्तान की हार उनकी एक सामान्य विफलता नहीं थी, बल्कि यह उसके सैन्य बल और मनोबल या दोनों की एक हार थी। 10 मई को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से संपर्क किया और सैन्य कार्रवाइयों को रोकने की अपील की। मैं सदन में यह बात फिर से दोहराना चाहूंगा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से संपर्क किया और सैन्य कार्रवाइयों को रोकने की अपील की। 12 मई को दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच औपचारिक संवाद हुआ और दोनों पक्षों ने सैन्य कार्रवाइयों पर विराम लगाने का निर्णय लिया। अध्यक्ष महोदय, हमारे सैनिकों का जो मनोबल, मातृभूमि की रक्षा करने का जो उनका समर्पण है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसका दर्शन 140 करोड़ से अधिक भारतवासियों ने देखा। मुझे खुद भी और प्रधानमंत्री जी को सीमावर्ती क्षेत्रों में जाकर हमारे जवानों से मुलाकात का अवसर मिला है। अध्यक्ष महोदय, श्रीनगर के मिलिट्री बेस पर, भुज के एयरबेस पर, उधमपुर के कमांड सेंटर पर, हर जगह प्रत्यक्ष मैंने अपनी आंखों से देखा कि हमारे सैनिकों का मनोबल अपनी पूरी बुलंदी पर था। उनकी आंखों में विश्वास है और उनका संकल्प अडिग है। वे न केवल भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, बल्कि हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान की भी, अध्यक्ष महोदय, रक्षा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश में जनता सत्ता पक्ष को और विपक्ष को अलग अलग दायित्व सौंपती है, दोनों को अलग अलग दायित्व, और हेल्दी डेमोक्रेसी में तो स्वाभाविक है। सत्ता पक्ष का काम होता है जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना, और विपक्ष का काम होता है सरकार से जनता के मुद्दों से संबंधित जरूरी प्रश्न पूछना। ऑपरेशन सिंदूर क्यों शुरू किया गया, इसकी जानकारी पहले भी दी गई है और आज भी मैंने सदन को दी है। अध्यक्ष महोदय, कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने बीमार हैं। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मारे गिराए। यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है अध्यक्ष महोदय, तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हां। मैं विपक्ष के सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हां। आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए कि जिन आतंकियों ने हमारी बहनों, हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया, क्या हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में उन आतंकियों के आकाओं को मिटाया? तो इसका उत्तर है हां। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं। अध्यक्ष महोदय, लक्ष्य जब बड़े हो तो अपेक्षाकृत छोटे मुद्दों पर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। लक्ष्य बड़े हो तो छोटे मुद्दों पर, अपेक्षाकृत जो छोटे मुद्दे होते हैं कंपैरेटिवली, उन पर ध्यान नहीं जाना चाहिए, क्योंकि छोटे मुद्दों पर ही ध्यान देते रहने से देश की सुरक्षा और सैनिकों के सम्मान और उत्साह जैसे बड़े मुद्दों से ध्यान
हट सकता है, जैसा कि विपक्ष के हमारे कुछ साथियों के साथ हो रहा है। अब चूंकि विपक्ष के मित्र ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उचित प्रश्न नहीं पूछ पा रहे हैं, तो उन्हें मैं क्या बताऊं अध्यक्ष महोदय। मैं लगभग 4 डिकेड से अधिक समय से राजनीति में, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, अपनी पार्टी हो या दूसरी पार्टी हो, कभी भी किसी के साथ दलगत राजनीति को मैंने शत्रुतापूर्ण तरीके से जिंदगी में नहीं देखा है मैंने अध्यक्ष महोदय। इसलिए आज अगर विपक्ष प्रश्न पूछने में असफल है, मैं विपक्ष को उनके इस काम में थोड़ी सी मदद करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के अपने सम्मानित साथियों से यह कहना चाहता हूं कि यदि आज हम लोग सत्ता पक्ष में हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम हमेशा सत्ता पक्ष में ही रहेंगे। यह आवश्यक नहीं है, किसी के लिए आवश्यक नहीं। एक लंबा समय हमने विपक्ष का काम किया है, एक लंबा समय हमने सरकारों से सवाल पूछने में लगाया है। जनता ने जब हमें विपक्ष में रहने का दायित्व सौंपा था, तो हमने विपक्ष में रहकर विपक्ष की भूमिका को बड़े ही सकारात्मक तरीके से निभाया भी। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष में रहकर हमने कैसे प्रश्न पूछे, इसके कुछ उदाहरण मैं यहां रखना चाहता हूं। 1962 में अध्यक्ष महोदय, चीन के साथ हुए युद्ध में जब दुखद परिणाम आया, तो हमने उस समय की सरकार से यह पूछे थे, लेकिन वह प्रश्न यह था कि हमारे देश की धरती पर दूसरे देश का कब्जा कैसे हुआ। हमने यह प्रश्न पूछा था कि हमारी सेना और हमारी जनता अपमानित क्यों हुई। हमने यह प्रश्न पूछा था कि बड़ी संख्या में हमारे सैनिक हताहत कैसे हुए। हमने यह प्रश्न नहीं पूछा कि हमारे टैंक, हमारी मशीनें, हमारी बंदूकें क्यों ध्वस्त हो गई। यह प्रश्न हम लोगों ने नहीं पूछा। मशीनों और तोपों की चिंता न करके, मशीनों और तोपों की चिंता न करके अध्यक्ष महोदय, हमने देश की टेरिटरी की चिंता की, हमने देश के सैनिकों की। इसी तरह 71 के युद्ध में, 71 के युद्ध में जब हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया, मैं उस समय की सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं। हमने अपने राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व की प्रशंसा की। हमने यह नहीं देखा कि किस दल की सरकार है, किस विचारधारा की सरकार है, इसकी चिंता नहीं की कभी। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में खड़े होकर उस समय के नेतृत्व की प्रशंसा की थी। हमने इस बात की खुशी जाहिर कि हमने अपने शत्रु को सबक सिखाया। हमने उस दौरान यह प्रश्न नहीं पूछा कि इस सबक सिखाने के दौरान में भारत के कितने प्लेन्स गिरे, भारत के कितने इक्विपमेंट्स बर्बाद हुए। यह प्रश्न अध्यक्ष महोदय उस समय भी हम लोगों ने नहीं पूछा। अध्यक्ष महोदय, यदि मैं इसे और भी प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊं, तो किसी भी परीक्षा के परिणाम में रिजल्ट मैटर करता है। यदि किसी परीक्षा में कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है, तो हमारे लिए उसके मार्क्स मैटर करने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसकी पेन खो गई। अध्यक्ष महोदय, अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर करता है, और रिजल्ट यह है अध्यक्ष महोदय, अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर करता है। और रिजल्ट यह है अध्यक्ष महोदय कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था, उन लक्ष्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने में हमने कामयाबी हासिल की। अध्यक्ष महोदय, भारत हमेशा से पाकिस्तान सहित अपने पड़ोसी देशों से मित्रता और सौहार्द सहयोगपूर्ण संबंध का सदैव इच्छुक रहा है। इसके लिए भारत की सभी सरकारों ने ईमानदारी से प्रयास भी किए हैं। वह चाहे आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी हों, या अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, या हमारे स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी हों, या प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, सभी ने हमेशा चाहा है कि इस इलाके में शांति और समृद्धि बनी रहे। सभी ने यह चाहा। अध्यक्ष महोदय, यह बात हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यूज के साथ मेल खाती है, इसलिए ऐसा हुआ। अध्यक्ष महोदय,
पूरा विश्व जानता है कि पूर्व प्रधानमंत्री से अटल बिहारी